శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవానికి కానీ పేరు నమోదు చేయించుకున్నటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మ అంగం. మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణాం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణాం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, நாம் திருமலையில் நடைபெறும் ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். சங்கல்பத்தை சேவித்தோம். அடுத்தது விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வச்சனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது இந்த திருவெங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண உற்சவம். அடுத்தது திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் கைங்கரியத்தையும் சேவிக்க இருக்கிறோம். சப்தகிரி வாசனுக்கு அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள். அதிலே அந்த சகசர நாமங்களில் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷங்கள் உண்டு. மகாவிஷ்ணு 10 அவதாரங்களில் முதல் 5 அவதாரங்கள் யாவும் அவை கொண்ட வடிவால் மீன், ஆமை, பன்றி, நரசிம்மம், வாமனன் பெயர் பெற்றவையாயிருக்க
பரசுராம அவதாரமோ தன் கையில் ஏந்திய ஆயுதத்தால் பெயர் பெற்றது எனலாம். பரசுராமர் அவதாரம் என்பது திருமாலின் 6வது அவதாரமாகும். இந்த அவதாரம் பாரதத்தில் தற்போதைய கேரளா மாநிலத்தில் தோன்றியபடியால் இன்றும் கேரளா மாநிலம் பரசுராம கஷேத்திரம் என்றே பெயரழிக்கப்படுகிறதாம். சப்த ரிஷிகளுள் ஒருவரான ஜமதக்னி முனிவருக்கும் அவரின் மனைவியான ரேணுகா தேவியின் கடை பிள்ளையாக அந்தனர் குலத்தில் திருமாலின் அம்சமாக அவதரித்தவர்தான் நம் பரசுராமர். இவர் அந்தன குலத்தில் தோன்றினாலும் ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவதில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டு குறிப்பாக கோடாரி என்னும் ஆயுதத்தை தன்னிடம் காப்பாக கொண்டதால் பரசுராமன் என்று பெயருடன் விளங்கினாராம். சிவதவம் புரிந்து அபோவிர்ணன் பரிவாதேஷே கிருணம் தாகும் சர்வம் தர்மா யதமாபஸ்வா சுதமா சாந்தா சாந்தமா சுவா சுதமா போதா போதமா புண்ணியா புண்ணிதமா மேத்யா மேத்யதமா முதாம் தர்சா போதா பிரம்ம பவித்ரேண போதா சூரியஸ்தரஸ்மை ஆபோ வாயுதும் சர்வம் விஸ்வாபூதான்யாப பிராணாபாப பசுவாபோ நமாபோ மதமாப சம்ராடாபோ விராடாப சுராடாப சந்தாகுஷாபோ ज्योतिषाभो यजोगिषाभो सत्यमाभो सर्वा देवताभो भूर्भो स्वराभो अस्मिन् कुम्भे गङ्गासरित्रावाहयामि यथेशतं वर्णे सहस्रं ज्ञापादाविदा पुत्रा तेभ्यो नृसतोद्विष्णुरिष्वे देवा मुञ्चन्तमत सुस्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाजीवनं समर्पयामि वर्णाय नमः रक्ताम्बरदाय नमः प्रियसे नमः रक्ताम्बरदाय नमः यादस्मृतये नमः वर्णाय नमः सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थेनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणस्कर्मणा निर्विघ्नेन प्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयाब्धिं सङ्केतं शुष्परधवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयोस्माद्दिदामेत्वाश्वेदात्तमेत्वोत्सम्भोः वैराजन्ते सतन्निधत्तां प्रेक्षां दिशोपदानाम्नादिः यामे शस्तान् दातु ओं भूः पद्माकारणे सक्षणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सुत्रतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्पत्नीसक्सेन सेदमासनं विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृत राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुवासिता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य कुर्यात् सर्वारिसक्सेन पूजनं भगवद्विरण्नाथः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाचतां सौन्यां करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामिः इदं विष्णुरुचक्रमे त्रेधानति देवतं समूढमस्वागुं सुरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो वृतानि वसुसि इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातनं तद्विप्रासय पुण्यवोजार्ध्रवागुं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं दृढोदा दृढशस्त्रस्य दृढोदा सरस्य प्रेम सदे दृढोदा वीरद्विषण्णो दृढोधाराः दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वेदोपविशं यदा वै सूर्यवदति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यत्तत् हन्यं पश्येति तावत् कृतत्कारी स्यात् पुण्याः यव कृते ओं भूः अतिपुराकृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसराश्रोतन्त्रं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्म पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्णेमि स्वस्तिनः बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसराश्रोतन्त्रं शान्तत्वं स पुण्यावाचरुणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्येनं सां सद्यां तरं देवं तर्धेयन्नोऽस्तु
अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवीं सदस्वीराः ओं भूः अतिवरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सक्रमाङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नास्तोत्रं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि रुद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्थानवोर्जेदादनां महेरणाय चक्षे योपशोधमार्दस्तस्य तेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोय शिक्षयाय जन्मधा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णः श्रियः पावकायास जातः कस्य भोजाश्चन्द्रः अग्नेयागर्भन्धद्रैवरूपास्थानापसग्स्वना भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सपनातुमा पणन्तमादेव जनाः पणन्तु मनवोधिया पणन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा हुतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यामुखं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वरिति सहमाप्नातु सोमस्वस्यावरुणः समीचाः यमराजाः प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्सनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजं शन्नो हस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिरा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्याहान्ति शीघ्रः पशवः मार्जयन्ताम् उदीहीच्चान्दिशा भोषयो वनस्पतिः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाहामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तोः तमः कृतं वत्सति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरेत् सर्वेत् सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्चेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषर्विप्राणां महिषा मृगानां सेनो गृध्रानागस्वैतर्पणानागस्वमः पवित्रा मध्ये तरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोह्येकोऽध्यमानोऽनुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसस्य सनरन्तरिक्षसद्धोता वेसि वैदिद्रोणसते सद्वरसद्रद्योतमदब्जा गोजारुतजा अद्रिजारुतं बृहते यस्माज्जातानपराणैव किञ्चनाशय आवेश भुवनानि विश्वाः प्रजापतिः प्रिया संविधानत्रीणि ज्योतिगुंसि सदशेषु षोडशि विधत्तारकं हवामहे वसोः कविद्वनातनः सवितारं नृचक्षुषं वरुणान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनान्मः यथाभासा गुरोभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷாய நமஹ. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை புண்ணியாக வாச்சனம் இனிதே முடிந்தது. அடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியம் அர்ச்சகர் சுவாமி செய்ய தொடங்கியுள்ளார். எந்தை தந்தை தந்தை தந்தைக்கும் முந்தை வானவர் வானவர் கோனேடும் சிந்துப்பூ மகிழும் திருவேங்கடத்து அந்தமில் புகழ் காரேரில் அண்ணலே என்பது நம்மாழ்வார் பாசுரம் அல்லவா? அப்படிப்பட்ட அந்த பகவத்கீதையில் கூட சொல்லி இருக்கிறார், வம்சங்களுள் காசிராஜன் வம்சமும் ஒன்று, மற்றொரு வம்சம் விதேக ராஜாவின் வம்சம். இந்த இரண்டு வம்சத்திலும் பிறப்பவர்கள் எல்லோரும் சிறந்து வீரர்களாக திகழ்வார்களாம். இது எப்பொழுதிலிருந்து ஆரம்பமானது என்றால் உபனிஷத்து காலத்திலிருந்து தொடங்கி தொடர்ந்து வருகிறது. உபனிஷத்து காலத்திலும் கூட காசிராஜனும் விதேகராஜனும் சிறந்த வீரர்களாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
தாரண்ய கோபனிஷத்தில் ஒரு இடத்தில் யதா காஷ்யவ வைத்தே தேகவா உக்ரம் தனுரதித்யம் கிருத்வா என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. எனவே அப்படிப்பட்ட வீர வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் நம்மோடு இல்லாமல் அவர்கள் பக்கம் இருக்கிறார்களே என்ற பொறாமை. மேலும் காசி ராஜஸ்து என்று உள்ளுவது அல்லவா? அச்சொல்லுக்கே வேறொரு விதமாகவும் பொருள் காணலாம். பிருகதாரண்ய கோபனிஷத்திலேயும் காசி ராஜஸ்ய என்ற சொல்லே குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் இவ்விரண்டிற்கும் சம்பந்தம் உள்ளதா என்றால் நிச்சயம் உள்ளது. காரணம், அந்த உபனிஷத்தினுடைய சாரமே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா. அந்த விஷயத்தை தெரிவிப்பதற்காக காசி ராஜஸ்ரீ என்று கூறியுள்ளார்கள். காசி ராஜஸ்த வீரியவான் என்பதை போலவே புருஜித் குந்தி போஜஸ்த என்பதும். குந்தி போஜஸ்ட என்ற பெயர் உண்மையிலே குந்தி தேவியின் தந்தையாம். அதாவது குந்தி தேவியை வளர்த்த தந்தை. அந்த வம்சத்தில் உள்ள அரசர்கள் பெயர்கள் எல்லாம் குந்தி போஜஸ்து என்றே உள்ளது. எனவே அந்த வம்சத்தில் வந்த பாண்டவர்களின் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த வீரர் ஒருவரின் பெயராகும். அதே போல ஷைப்பயஸ்த என்பது ஷப்யன் என்று சொல்லப்படும். இவன் சிபி தேசஸ்து அரசன் ஆவான். பக்தர்களே, இதோ இந்த அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம் தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்வு ரக்ஷாபந்தனம் என்னும் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ரக்ஷா பூஜை மற்றும் ரக்ஷாபந்தனம். ரக்ஷா பூஜையில் அந்த நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயசூத்ரிவதி கயிற்றால் அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜை செய்ய தொடங்கியுள்ளார். பிரதிசர தேவத பூஜாஞ்சகரிஷ்யே. ஓம் சுச்சீவோ ஹவ்யாம் षण्णोन सत्तान्तं सार्जर्तां स्वयंभरग्रें तें ताजा नागराजमावाहयामि सार्शेषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि परिसरदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरि ओं सन्निध स्वस्तिनः विवेदामश्विना भगः स्वस्ति देवेदिनर्मणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवा अवन्त्रिव स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्येरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो ऐते कृधि स्वस्ति बन्धा मुनिजरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथता घ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति नन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जदाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे श्रवयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, ரக்ஷா பூஜை இனிதே முடிந்து அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியம். திருவாடிப்புறத்தை தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் காப்பு திருவிழா என்று அழைப்பார்கள். அதை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். காப்பு என்றால் காப்பாற்றுவது. ஊரிலும் சரி, கோவில்களிலும் சரி, அது கிராம தேவத்தை ஆனாலும் பெருமாள் கோவில் ஆனாலும் உற்சவங்கள் திருவிழாக்கள் என்று வந்துவிட்டால், காப்பு கட்டிவிட்டால் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு போகக்கூடாது என ஐதீகம். விபத்தோ வேறு ஏதாவதோ நேர்ந்தால் விழா தடைப்படலாம் அல்லவா? ஆகவேதான் வேப்பிள்ளையோ மஞ்சள் கயிற்றையோ காப்பாக வலையில் மாதிரி அம்மனின் கைகளில் கட்டிவிடுவார்கள். பெருமாள் கோவில்களில் அந்த உற்சவத்தை பண்ணும் அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி வலது கையில் கட்டுவார்கள். இதை ரக்ஷை என்பார்கள். நாம் அனுதினமும் நடக்கும் இதோ இந்த திருமலை நாதனின் திரு கல்யாண உற்சவத்திலும் பெருமாள் தாயாருக்கு மட்டும் இன்றி அந்த திரு கல்யாணத்தை நடத்தும் அர்ச்சகர் சுவாமிக்கும் தடை எதுவும் வராமல் இருக்க அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷத்தை கட்டுகிறோம் அல்லவா? ஏன், கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வளைகாப்பு நடத்துவது கூட இதற்காகத்தான்.
நல்லபடியாக பிரசவம் நடக்க ஆக வேண்டுமானால் வேண்டிக்கொண்டு அந்த பெண்ணுக்கு வேப்பிள்ளை காப்பு, வெள்ளி காப்பு, தங்க காப்பு என்று போடுவார்களாம். ஏனெனில் இந்த வேப்பிள்ளை, வெள்ளி, தங்கம் ஆகியவற்றுக்கு ஒரு தீய சக்தியும் எந்த ஒரு தீய சக்தியும் நெருங்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு நூலில் எழுதும்போது கூட முதல் செய்யுளாக காப்பு செய்யுள் என்ற ஒன்றை முதலில் அமைத்து விட்டுதான் பின்பு நூலை எழுத தொடங்குவார்களாம். ஆகவே இந்த ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியம் எத்தனை முக்கியமானது என்று நமக்கு எல்லாம் தெரிகிறது அல்லவா? இந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்ததற்கு இதுதான் அர்த்தம். அதாவது தீய கண்களின் திருஷ்டியில் இருந்து பாதுகாப்பது எம்பெருமானோ லீலா மானுஷ்டி விக்கிரகமாகும். சசங்க சக்கரம் சக்கிரீத்த குண்டலம் என்பதற்கேற்ப சுந்தராங்கம் வடிவம். அந்த விக்கிரக திருமேனிக்கு எந்த பங்கமும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே நித்திய சூரியர்களால் முதன்மையானவரான ஆதிசேஷனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் செய்து ஜெயசூத்ராவதி என்றும் கயிற்றுக்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதோ அந்த பெருமானுக்கு அந்த வலது கையில் அந்த ரக்ஷையை கட்டிக்கொண்டு இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை சேவித்து நாம் அந்த பெருமானின் திருவருளை பெறுவோம். அந்த மந்திரத்தின் ஒலி கேட்டு புண்ணியமும் பல பெறுவோம். பக்தர்களே, ஆதிசேஷன் எல்லா வகையிலும் கைங்கரியம் பண்ணும் நித்திய சூரி அல்லவா? ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், பட்ட மகரிஷியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்கள் இருவரும் பார்க்கடலில் சயனித்திருக்கும் தங்கள் நாதனின் திருவடிகளை மெல்ல பிடித்து வந்து கொண்டு இருக்கிறார்களாம். அப்போது யோக நித்ரையில் புரிவது போல மாயம் செய்யும் அந்த பகவானுக்கு தனது தேவியர்களின் முக லாவத்தை காண வேண்டும் என்று தோன்றியதாம். எழுந்து பார்த்தால் தேவியர்களுக்கு வெட்கமாக இருக்கும் அல்லவா? என்ன செய்வதென்று யோசிக்க குடையாகவும் படுக்கையாகவும் இருக்கும் ஆதிசேஷனை பெருமானின் உள்ள கணக்கினை, அதாவது அவரது விருப்பத்தை தெரிந்து கொண்டு தனது 1000 தலைகளிலும் மின்னும் மாணிக்கைகளை எம்பெருமான் நோக்கி திரும்ப இந்த கண்ணாடி மாதிரி ஒளியில் தேவியர்களின் பிம்பங்களை கண்டு மகிழ்ந்தாராம். எம்பெருமான் ஆதிசேஷன் எத்தனை கைங்கரியங்கள் என்பதை பார்த்தீர்களா? அந்த ஆதிசேஷனே இந்த நித்திய திரு கல்யாணத்திலே மலையப்ப சுவாமியின் இந்த திரு கல்யாணத்தில் இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் ஆகியிருக்க அந்த ரக்ஷையை பெருமானின் திருக்கரங்களில் சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா கோவிந்தா என்று குறை ஒன்றும் இல்லாத அந்த கோவிந்தனை அறியாத பிள்ளைகளான நாம் அன்பினால் அழைப்போம் அல்லவா? இதைத்தானே ஆண்டாள் பிராட்டியும் தனது திருப்பாவை பாசுரத்தில் அறிவுறுத்து உள்ளார். அதோ அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இடது கையில் கட்டிக்கொண்டு இருக்கிறார் அந்த ரக்ஷத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே சேவித்து அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாரின் திரு அருளை பெறுவோம். நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் மையில் கமலமும் வெள்ளமும் நூதலிய செய்குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை கேழல் திகழ் வரக்கொழ மொழு பெயரிய. வராகம் என்பது விஷ்ணுவின் 3வது அவதாரமாகும். விஷ்ணு புராணம் வராக அவதாரத்தை தியாகித்ததான் அடையாளமாக கூறுகின்றது. அவதாரத்தில் விஷ்ணு ஒரு பன்றி உருவம் கொண்டு 2 தந்தங்களுடன் அவதரித்தாராம். இந்த உலகில் உயிரினங்களை படைப்பதற்கு விரும்பிய பிரம்மன் பிரளய நீரால் மூழ்கி இருந்த பூமியை மீட்க ஸ்ரீமன் நாராயணத்தை தியானித்தாராம். பெருமான் பிரம்மனது நாசி துவாரத்தில் இருந்து கட்டை விரல் அளவுள்ள பன்றி குட்டியை வெள்ளி கிளம்பி மிக பெரிய மலை போன்ற வராக உருவக்கொண்டு கடல் நீரை பிளந்து சென்று தன் பற்களால் பூமியை எடுக்க முயன்றாராம். அவ்வமயம் அசுர தலைவனான இரண்யாட்சன் அவரை எதிர்க்க கனப்பொழுதில் வராக பெருமாள் அவனை அழித்தார். அதோ அந்த பக்தர்களே, இந்த ரக்ஷா பந்தனம் நிறைவேற உள்ளது. அர்ச்சகர் சுவாமி தனது வலது கையில் அந்த ரக்ஷத்தை கட்டிக்கொண்டு அந்த
எம்பெருமானின் திருவடிகளை சேவித்து நமக்காக அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த எம்பெருமான். நாமும் அந்த எம்பெருமானின் கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இந்த கோவிந்த நாமவழியை சொல்லிக்கொண்டு நாமும் அந்த எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவோம். அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நித்தில மதானி அத்தகு மதிமருச் செய்யோல் சேர்ந்த நின் மாசுயில் அகலம் வளர்த்திரை மன்னிய கிளர்பொறி நாப்பன் வைவான் மறுப்பின் களிறு மண் அயர்பு புள்ளி நிழலும் புரைப்படல் அரிது என உள்ளுணர் உரைபோர் உரையோடு சிறந்தன்று என்றாராம். விஸ்வே தேவாசோ அதிவோஜதாமி தேவீஹி ஷடர்வீருணக்னோத விஸ்வே தேவாசோ ஹவீரயத்வம் மகா ஆஸ்மே பிரியா மாதனோபிர்மாரதாமத்வேதே சோமராஜன்ய உத்வன்யமானமஸ்யாமேத்யம் வாப்மானம் யஜமானஸ்யம் ृषणाहोतविंशति अष्टावन्दकं ऋषणापितोहरम् येन देवासो येन विक्रियाः जातवेदभुवनश्रेति अग्निवश्रद्धादेह व्यवागं समीगर्भात् जने अन्व्यामयो भूः यदस्पदिको घ्रियन्नग्निपावरोहजातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यमनप्रजानन्ने आयुप्रियाङ्गरेमस्मास्तेन ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवदेवतपस्व ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्रसाद्धिमस्रच वेनवः तबुद्ध्यामासविष्टासश्चवनमेतश्चिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मणे नमः यदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणि दातु साधन्यं सिगं सभें पितृश्रावणं मेधा तस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्तुष्टेजमानस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्तुष्टेजमानस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स वैष्णव्यस्थ यज्ञेः स वायुभूतेस्थ विष्णुर्मनसाभूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्थः परशरस्पवित्रेः स वैष्णव्यो देव भुवग्रे यज्ञं नेताग्नियज्ञमतं दत्ता युष्मानिन्द्रौनितौत्ततोर्ययूजमिन्द्रनेध्वमृततोर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षता विष्णुस्तुपोऽसि पश्चिमस्थो धत्तां देवी धारणाति वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागसपृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागसपृष्टे यजमानच्छदेहि ओं प्रणय दक्षप्रणयतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोमावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपास्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवोत्सवमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनर्भामि इंद्राष्टनर्भामि अग्नेष्टनर्भामि सोमाष्टनर्भामि अग्निशोमाभ्याञ्जष्टनर्भामि प्रजापतिष्टनर्भामि ब्रह्मणेष्टनर्भामि इंद्राष्टनर्भामि सुभ्योष्टनर्भामि रुद्राष्टनर्भामि रुद्रेभ्योष्टनर्भामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टनर्भामि मित्राष्टनर्भामि वरुणाष्टनर्भामि आदित्येभ्योष्टनर्भामि वसुभ्याञ्जष्टनर्भामि भूषणेष्टनर्भामि कक्षाष्टनर्भामि कक्षदेव सोमाष्टनर्भामि अवभासनयज्ञाष्टनर्भामि यज्ञदिष्टेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनर्भामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनर्भामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चिरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्धं रक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठां रक्ष प्रतिष्ठारादयः
चिक्पति स्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा अक्षता चतुर्भिर्मामे वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अविरप्रदसे नमः पंचराजसे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः आदित्येन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदेवताप्रसवा षष्ठशतसहस्राणि तमक्षयमर्भदमानया अयन्ति यद्मा आत्माजाद्वेदस्येनेध्वस्तवध्यजास्मान् प्रजापतिब्रह्मर्तेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ये आधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाहाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य तिरं सावित्रा गृहीत्वा व्यातिर्ज्योति ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तर्विर्यातृणात् प्रायश्चित्तार्थमतो दिवैर्वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्य वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो वृतानि पश्यति इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वजक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासवन्यवोजार्ध्रवागं दस्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्वते नमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः
तस्मै समस्तवेदार्थविदे नमः श्रुतिस्मृतिर्दे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तितकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रेमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानां अधोभागे महानारायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमुनिरुद्यवर्णवायुकुभेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोरकाख्य सप्तान्नवपरवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्जस्सागतान्मलि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलयसह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यवद्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतु कपालकरवणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामा सङ्घातप कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैसूर्यमण्डलपर्यन्तं गतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलापकर्षणक्रमेण सर्वराष्ट्रपकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमातिराप्ताप्तर्याम शान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्धर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरोपणवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रगति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी
परब्रह्मणे पराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवन अप्नुवान और्ववैदल पंचार्षे प्ररान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्म्यां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप अवत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्ररान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं श्रीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा षड्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் பிராட்டிமார்களுக்கும் கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு இனிதே முடிகிறது. இனி அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இன்று தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஷோடச உபச்சாரங்கள் அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம் அர்ச்சகர் சுவாமி. தர்மாத்தமனானவன் ராமன் மானிடராகவே வாழ்ந்து மானிட தர்மத்தை நிலைநாட்டிய மகா புருஷன் அந்த ஸ்ரீராம பிரானுக்கு நமது பாரத தேசத்தில் எத்தனையோ கோயில்கள் அமைந்துள்ளன. அந்த வகையில் ஆந்திரா மாநிலத்தில் கடப்பா மாவட்டத்தில் ஒண்டிமிட்டா என்கிற திவ்ய கஷேத்திரத்தில் ஒரே கல்லில் உருவாக்கப்பட்ட மிக பெரிய ராமர் கோயில் அமைந்துள்ளது. வருடம் ஸ்ரீ ராமபிரான் அவதாரமான சித்திரை மாதத்தில் இங்கே கோலாகலமாக பிரம்மோற்சவம் நடைபெறுவதாம். முடிவாக ஸ்ரீ ராம நவமிக்கு அடுத்ததாக சீதா ராம கல்யாணம் நடந்தேறிய பின்னர் இந்த பிரம்மோற்சவத்தை நிறைவு செய்வார்கள். திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் மேற்பார்வையில் இருக்கும் இந்த ஆலயம் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டு தற்போது புது பொலிவுடன் நிகழ்கிறது. திரு கல்யாணத்துக்கு ஆந்திர மாநில அரசு சார்பில் பெருமான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவிற்கும் சீதா தேவிக்கும் பட்டு வஸ்திரம் சமர்ப்பிப்பதும் வழக்கமாக இருந்து வருகிறதாம். முதல் அமைச்சரோ அல்லது அவரது சார்பாக அவரது அமைச்சர் அவையில் இருக்கும் அமைச்சர் அந்த வஸ்திரங்களை தனது சிரசில் சுமந்து வந்து பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பார்கள். இதில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் முக்கிய அதிகாரிகளும் கோயில் நிர்வாகிகளும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் கலந்து கொண்டு திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவார்கள். பக்தர்களின் வசதிக்கேற்ப பேருந்துகளும் தங்கும் இடமும் செய்யப்பட தருகின்றது. இப்போது நம் பின்னோக்கி திரேத்த யுகத்தில் மிதிலாபுரியில் கோலாகலத்துடன் நடைபெற்ற சீதாராம கல்யாணத்தை பற்றி பார்க்கலாம். விதி எங்கும் மாநிலை தோரணங்கள் ஆட அனைவரது இல்லங்களில் முன்பு பெண் மணிகளால் போடப்பட்ட அழகிய கோலங்களும் தீப விளக்குகளும் பிரகாசிக்க ஆடவரும் பெண்டீரும் ஆடலும் பாடலுமாக கோலாட்டங்கள் போட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள். கும்மியடித்து கொண்டு கூட்டமாக திரு கல்யாண மண்டபத்தை நோக்கி நடந்தனர். இதை கம்பர் பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சாந்து பொதி சீதம் மின்னின் நிழல் அன்னவள் தன் மேனியொழிமான அன்னமும் அறமை பெயரும் அறமிழுத்தும் நாண மண் அவையிருந்து மணி மண்டபம் அடைந்தாள் என்ற பாசுரத்தை இட்டார். தன்னுடைய இயற்கையான தேக ஒளியோடு பொன்னிறக்கே இயல்பான மின் ஒளியுடன் சேர்ந்து பூவின் நறுமணமும் கலந்து சந்தனத்திற்கு இயல்பாக பொதிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியுடன் அரம்பையர்
வெட்கி தலை குனியும்படியாக பேரழகுடன் விளங்கினாள் சீதாதேவி என்கிறார் கவி. கண்டவர் கண்களை இமைக்க மறுத்தாராம். நாங்கள் செய்த தவத்தின் பயனாக ராமன் இங்கு வந்து சங்கு சக்கரம் ஏந்திய திருமால் செந்தாமரை கண்ணன் அவன். ஆதலால் அவனை மனம் புரிய வேண்டும் என்று இவள் செந்தாமரை மலையில் தோன்றியே திருமகளே என்றாராம். அதே போன்று சீதா தேவியின் மனோநிலையை கம்பர் கூறுகிறார். வில்லை வளைக்க வேண்டியவன் வில்லை உடைத்து விட்டாரே, தன்னை மறுத்து விடுவாரோ என்கிற பயத்தோடு இருந்தவர்களுக்கு இப்போது திரு கல்யாணம் நடைபெறும் வேளை வந்துவிட்டதை நினைத்து புல்லரித்து போகிறார்களாம். ராமனை நினைத்து மாத்திரத்தில் சீதையின் கொடி உடல் அமிர்தம் உண்டதை போல் தடித்து விட்டதாம். அத்தனை சந்தோஷம். அன்று கடல் கடைந்து தேவர்களுக்காக திருமால் பெற்று தந்த அமிர்தம் அதை முழுவதுமாக தானே அருந்தினால் ஏற்படும் களிப்பு தடிப்பு பூரிப்பு சீதாதேவிக்கு ஏற்பட்டதாம். பல பேர் அருந்த வேண்டிய அமிர்தம் அல்லவா அது? அதை ஒருவரே அருந்தினால் உடல் பூரிக்காதா? இதுதான் கம்பனின் கவித்திறன். சீதா பிராட்டிக்கு அந்த அமிர்தமே ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி அல்லவா? அந்த அமிர்தத்தை ஸ்ரீராமன் திருமண கோலத்தில் தேரில் ஏறி மணமண்டபம் அடைந்தானாம். அப்போது மிதிலை விதிகளில் ஸ்ரீராமனின் பேர் அழகை கண்ட மகள் ஆனந்தித்தாராம். தோள் கண்டார் தோளே கண்டார், தொடு கழல் கமலம் அன்ன தாள் கண்டார் தாளே கண்டார், தடக்கை கண்டாரும் அக்தே வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார், ஊழ் கண்ட சமயத்தன்னான் உருவ கண்டாரை கூறினார். ஸ்ரீராமன் மண மண்டபம் சேரவும் சீதா தேவியும் மணமாலையோடு வருகை தரவும் அண்ணனும் நோக்கினாள் அவனும் நோக்கினாள் என்றார் கவி. அலை கடலில் தோன்றி ஆவணி வந்து இதோ மண்டபம் வந்த சீதாதேவி சிவந்த பொன்மயமான பூங்கொம்பு, வில் போன்ற உருவம், கையில் போன்ற மீன்கள் போன்ற விழிகள், அந்த மீன்களை பூரண சந்திரன் போன்ற திருமுகம் ஏற்றி கொண்டு இருக்க தான் மணக்கை போவதை ஸ்ரீராமபிரானை என்கிற மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்த முகத்தோடு கிழக்கு நோக்கிய மண்டபத்தில் நுழைகிறார்களாம். கீழ் திசை சூரியன் முளைத்து எழுந்ததை போன்ற சூரிய குல திலக்கனான ஸ்ரீராமனை கடைக்கண்களில் தரிசித்தாளாம். இதோ வசிஷ்டர் நடத்தி கொடுக்கிறார் சீதாராமரின் திருக்கல்யாணம். தண்டிலம் விரித்தனன் தருப்பை சாத்தினன், மண்தளம் வீதி முறை வகுத்து மென்மலர் கொண்டு நெய் சொரிது ஏறி குழுமம் மூட்டினன், பண்டுல மறை நேரி பரவி செய்தனன், அரிசியை பருப்பி தர்ப புல்லை இட்டு வட்டமான இடம் அமைத்து அக்னி வளர்த்து பூக்களை தூவி ஹோமாக்னி மூட்டி மறை மந்திரங்களை உத்தித்தார் வசிஷ்டர் மகாமுனி. தம்பதி சமேதராக சீதா தேவியை ஸ்ரீராமனுக்கு கன்யாதானம் செய்து கொடுத்தார் ஜனக மகாராஜா. திருமாலும் திருமகளான லக்ஷ்மியும் போல் என குலக்கொடியான சீத்தையோடு நிலை பேறு பெற்று வாழ்வாயாக என்று ஸ்ரீராமனிடம் கூறி குளிர்ந்த மங்கள தீர்த்தத்தால் தாரை வார்த்து ஸ்ரீராமபிரானின் திருக்கரங்களில் கொடுத்தார். கன்யாதானம் நிறைவேறி அடுத்து பாணிகிரகணம் சீதா பிராட்டியின் தலிக்கையில் பிடித்தான் ரகுகுல ராமன். மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடை தாமம் நிறை தாழ்ந்து பந்தர்கீழ் மைந்துனன் நம்பி மதுசூதனன் வந்தேனை கைத்தலம் பற்றி கலா பிரஜாபதிஸ்தமுகம் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேத அன்வஸ்ருஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருதாம் அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்களீர்யம் மதுரிமாகும் சமேதவஸ்யத சௌபாகியமத்வை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதனாம் ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீயாநிர்யாய ஸ்ரீயம்பயோ चरद्रिभ्यो ददाति श्रियंवसानामृतोत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधामिदद्रौः श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्तमुखं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत
अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपस्तथा सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विपरेतनां मेदिनी देवी वसुन्धरी स्यात् सदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तु न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुडिया त्वां वस्त्राचके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः सेजमानो विर्भिः अहेडमानो वर्णे हवो दर्शिं समान आयु प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवसेडवयासिष्ठाः यजुष्ठा पण्डितमस्सो जानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुच्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेदस्यावसव्यष्टौ अवयक्षणवर्णं राणुविहिं मृडिं सुहोनेदि स्वाहा तमग्ने हयास्यासन्मनसायतः हयासन् हव्यमूषे यानो देवे जग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूतिपुरोक्तिमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानोपमी समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवर्णनां सदाज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युवब्रूदेऽग्नौ लाजानववन्दी दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातय मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहदेनागुमृथेनोत्तर्जन्यस्य शुष्पेण दस्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्या इव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां
यन्नार्यवभ्रूतेऽग्नौलाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातय मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहिदीनागमसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेण दस्ताममुदागुं मनो विश्वावदत्वया वयं धाराधन्या इव अधिगाहे महेद्विषः इमां राजानावामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवभ्रूते अग्नौ राजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातय मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहितेनागमृतेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेण दस्तामरुदागुं मनो विश्वावदत्वया वयं धारावदन्या इव अधिगाहे महेद्विषः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रायश्चाद्धमतो देवैष्णवं होष्ये अदितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतप्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवतं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यां धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतः वृदानि पश्येन्द्रस्तेजसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसुरः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दशविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा अते नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवदेवतः प्रासावीः ओम भूवतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफल्यं पुरुष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदेवतः प्रसवा यदस्य कर्मणो तीर्थं यद्यानेन मिहाकरम् अग्निस्वष्टं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सदा हतादेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दाभूदग्निस्तत्पनराः जातवेदावचने स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात् पुनेन्द्रबृहस्पति पुनर्मेश्वाज्मं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेदन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्कुलमतिनोः क्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणे चेन्मग्नप्रवाणि यथोष्यसिधिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमैधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तहिपा सप्तज सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्दी सप्तयो निरावृत स्वानिदेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधे वनस्पति गन्धर्वाशिष्टे भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधे वनस्पति गन्धर्वाशिष्टे जीर्णं समन्तां भयविषावतेन समाते सर्वसम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभ गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधस्त्रिप्यन्तां यदक्षपदां महापुरुषां महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां ऐतेन नमगस्ताः हनुमते नमगस्ताः सरस्वते नमगस्ताः देवदेवतः प्रासावीः पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमय भूयात् स्वाहा मे अक्षरमा मे चेष्टाः प्राचान्ति देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां पश्चिमता विष्णुः सरमसि दक्षिणता विष्णुः सरमसि उत्तरता विष्णुः सरमसि सर्वान् समोक्ष्य
सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अध्यप्रोक्ता आप्यायन्त्वा मा बभोषदेवमृदां प्रषदेयश्च दिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायत्वाजा बलाजा तथाजा तञ्चवर्तते त्र्यायुषम् स्वामी मदर दीर्घायत्वाजा बलाजा शताजा शतञ्च वर्षसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्थानम् ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमर्दस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्माहरङ्गमाभूय शिक्ष्याय जन्मधा आपो जनयथा जनः यत्येज्ञे तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्येज्ञे वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्येज्ञे हरस्विनाहं हरस्ति भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां मयज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे योदज्ञान्मातोर्नवाः दुभ्राजमानसरसमध्या समावृषभोरोहिताक्षः सूर्योपस्यन् मनसा पुनातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना निखितन्तभया देवान् परिपूर्णन्तास्तमे प्रायश्चित्तान्यशेनान् होमकर्मात्मान् वै यान् तेषान्यशेनां श्रीष्णान् स्वर्णं कायेन वाचा मनसेन्द्रियाध्यात्मना उपदिशो आत्करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि पोसे मतलब अग्निं असंपुच्छा सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இந்த திரு கல்யாணத்தின் தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோம காரியங்களில் லாஜா ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாஹுத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் நமது அர்ச்சகர் சுவாமி. இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர்கள் எல்லாம் வந்திருந்து தென்னமை கட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கொடியெடுத்திம் நாமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான். அந்த எம் பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அந்த ஆண்டாளுக்கு கனவில் தோன்றி அதை தன் நண்பர்களிடம் கூறுவதாக சொல்லுகிறார். அதே இந்த வாரணம் ஆயிரம். இதில் 10 பாசுரங்கள் உள்ளன. அந்த 10 பாசுரத்தை தினமும் நடைபெறுகின்ற இந்த திரு கல்யாணத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி கொண்டு விளையாடும் இந்த நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்தால் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. எத்தனை அழகான பாசுரங்கள் பாருங்கள் பக்தர்களே. அந்த வாரணமாயிரம் நிகழ்வு முடிந்து அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறார். அது ஒரு இனிமையான கட்டம். அதே அந்த மாலா பரிவர்த்தனம். வெங்கடகிரி என்று அழைக்கப்படும் திருமலையில் 7 மலையாக ஆனது சப்தம். சப்தம் என்றால் 7 கிரி மலை. இந்த நித்திய சக்கர கல்யாண சக்கரவர்த்தியான எம் பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் மாலை மாற்றுதல், அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலையை இன்னொருவர் அணிவது வழக்கம். அதேபோல் அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி தனது நாச்சியார் திருமொழியில் கொள்ளால் ஆணிரை வைத்து ஆயினக் என்கிற பாசுரத்தில் அவன் அணிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியான மனக்கவழும்
திருத்துழாய் மாலைகளை கொண்டு வந்து எனக்கு சூட்டுங்களே என்று கேட்டாளாம். இதோ அவளது விருப்பம்படி நமது கண்ணனாய் திருவெங்கடவன் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பில் அகலாத வீற்றிருக்கும் பெரிய பிராட்டிக்கு போய் சேர்ந்தது. அந்த பிராட்டி சூடிக்கொண்ட மாலை பிறகு பெருமானிடமே வந்து சேர்ந்ததாம். இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அந்த மாலை பரிவர்த்தனம். தேவிகளின் மேனி சுகந்தத்தையோடு கூடிய புஷ்பத்தை பெருமானின் திரு தோள்களில் வந்து சேர்ந்தது அந்த மாலைகள். பக்தர்களே, அந்த மாலா பரிவர்த்தனம் நிகழ்வு இனிதே முடிந்து நம்ம அர்ச்சகர் சுவாமி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்து இருக்கிறார். கோவிந்தனுக்கும் அந்த தாயார்களுக்கும் இருவர் சூடிய மாலை எத்தனை பிரியமானது என்பதை அந்த மந்திராசோத்தனையே நமக்கு தெரிவிக்கிறது அல்லவா? நமது கோவிந்தா என்ற அந்த நாமவழியை சொல்லிக்கொண்டே அந்த பகவானின் திருவருளை பெறுவோம். பக்தர்களே, அடுத்தது இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை அது ஆனதும் அதன் பின் தலம்பராரு என்கிற நிகழ்வு நடைபெற இருக்கிறது. மங்கள அக்ஷத்தை பெருமானின் திருவடிகளிலும் தாயார்கள் சிறுசுகளிலும் அர்ச்சகர் சுவாமி சேர்க்க உள்ளார். அதன் பின்பு கற்பூர மங்கள ஆர்த்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவு பெறும். அதோ அந்த அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. அக்ஷத்தை பெருமானின் திருக்கரங்களிலும் சமர்ப்பித்து బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను పడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను పడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ